Yeah, I was just saying that I celebrated or practiced yoga at the Rishikesh along the Ganga River during the International Day of Yoga. And when I was addressing the people there, I actually advised them that to send doctors away, they have to practice yoga on a daily basis. That is the golden rule that I have given to the people who I was there with during the International Day of Yoga. Okay. But you have to know also that we have over 10,000 Malawians of Indian origin. Most of them are from Gujarat. So concerning what I call traditional medicine, we should know that Africa is deep into it. But what we have seen in India is that it's much more scientific now. It's properly managed, it's properly researched, such that various ailments people are now understanding fully, and it's helping the health of the situation of many citizens in my country as well. So you should know that as regards to medication, most of the pharmaceuticals, we buy them from India. But nowadays people have realized that to get a cure, you have to switch to traditional medicine. So the market is there, and we also want to learn how we can also be able to do the same technology to our own medicine, because we do have traditional medicine as well. You know, Africans and Indians are more or less the same. Previously, there was no scientific medicine, but people get cured by taking proper medication from plants and other things that they knew would cure any type of disease. So I think, as the minister has said, it's really right that the market in Africa is there, and we are also learning a lot from here, such that it's properly packaged as it is being done here, and people are already buying the medicine from India, apart from the Western medicine. Thank you very much. So there are always discussions, and you should know that when the President of India went to Malawi, she signed an MOU on pharmaceuticals last year in October. So I feel regarding pharmaceutical medicine, that is, there's an agreement between India and Malawi about selling each other the medicine. So basically, it's just a matter of defining what medicine is, because both traditional and scientific or Western medicine peer review, people can still take and be cured or healed and benefit. And the traditional medicine, in my view, makes one get a real cure because there are no side effects. The Western medicine, which people say is scientific, you get a lot of side effects from, let's say, if you look at the treatment of cancer and other things that people are suffering in the modern world. So I believe that with that memorandum of understanding, there is also already a foundation laid down for the two countries to undertake such type of business. Okay. Thank you. Myself, Dr. Hasmukh Soni, Chairman All Gujarat Ayurved Medical Association. खास करके ऑल गुजरात आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन और स्पार्क मीडिया, ये हमारा 5th एडिशन है जिसमें हम आयुष इंडिया एक्सपो करने जा रहे हैं। और जो हमारे बीच में हमारे मुरब्बी है जो हार्ट फाउंडेशन और डॉक्टर नितिन सुमन शाह सर, वो हमारे इस कार्यक्रम के पूर्ण सहयोगी है और लास्ट 5 समय से वो हमारे को पूरा सहयोग कर रहे हैं। खास करके आयुष इंडिया एक्सपो करने का हमारा जो खास मिशन है
वो हम सब जानते हैं कि 2014 में एक आयुष विभाग बना कि जिसके तहत आयुर्वेद, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये पूरे ही जो सिस्टम है इनको एक ही सिस्टम के अंतर्गत लाया गया। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आयुष डिपार्टमेंट 2014 में बनाया, और स्पेशली आयुर्वेद जो है वो एक भारत की धरोहर है। हम जानते हैं कि हमारा यदि हमको भारत को विश्व गुरु बनना है तो आयुर्वेद एक वो ऐसा साइंस है कि जिसमें हम पूरे विश्व को एक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम ये जो सिस्टम लेकर आए हैं कि जिसमें सिर्फ जो लोग बीमार होंगे उसका ही इलाज नहीं करना है, लेकिन साथ साथ में लोग बीमार ही नहीं हो। जैसे अभी हमारे हाई एक्सेलेंस ने बताया कि ये जो चिकित्सा पद्धति है वो सिर्फ सारवार के लिए नहीं है, लेकिन सारवार के साथ साथ में माइंड, बॉडी और सोल, मन, शरीर और आत्मा, इसका पूरा संयोग करके एक ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बनी गई है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति सिर्फ निरोगी ही नहीं, लेकिन निरोगी के साथ साथ में जो हम हैप्पीनेस बोलते हैं, जो अपना खुश रहना चाहिए, व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा वो सफिशिएंट नहीं है। हम योगा और आयुर्वेद के माध्यम से इनको मेंटली भी रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर एक नागरिक जो है पूरे देश का और पूरे विश्व का, हम तो हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना लेकर चलते हैं, तो पूरे विश्व का व्यक्ति है वो भी हैप्पी रहना चाहिए, वो भी मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो आयुष इंडिया एक्सपो है वो हमारा उस तरफ का ही हमारा एक मिशन है। इस आयुष इंडिया एक्सपो में 50 से भी ज़्यादा आयुर्वेद के अंदर क्लिनिक रिसर्च करके टेस्टेड हुई फार्मा कंपनीज में जुड़ी है। वी आर वेरी थैंक्सफुल टू मिनिस्टर सर कि जिसमें छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो इस पूरे प्रोग्राम में, हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है वो स्टेट पार्टनर के रूप में जो जुड़ा है। मैं हमारे विधायक श्री संपत अग्रवाल जी का भी इस समय पे विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने एक पूरा इनिशिएटिव लेकर एक पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट, जो साहब ने भी पूरे डिटेल्स में बताया, लेकिन जो गुजरात में 900 से ज़्यादा अधिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो आयुर्वेदा की प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन हमारे वहाँ पे अभी भी रॉ मटेरियल जो है वो हमें कहाँ ना कहाँ से हमारा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में छत्तीसगढ़ है वो हमारे स्टेट पार्टनर बनने जा रहा है कि जहाँ पे से हमको अधिक से अधिक जो हमारी जो मेडिकल हर्ब्स है, जो हमारी बॉटनिकल हर्ब्स है, वो हमको वहाँ से मिल पाएगी। और गुजरात की सभी कंपनियाँ, वो कल इनके सब ऑनर्स भी आ रहे हैं, तो इनसे हम लोग 1-to-1 सर से मीटिंग भी करेंगे कि जिससे हमारे जो एक्सचेंज प्रोग्राम है वो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, और जहाँ पे भी हब्स की आवश्यकता है वहाँ पे भी हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे भी फार्मा को डेवलप करना है वहाँ पे भी हम आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के आयुर्वेद और आयुष विभाग जो है इसकी हर एक रूप से सर्वांगीण विकास जिसको हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में देखने जाए तो 1.2 लाख करोड़ का जो है वो आयुष विभाग का जो है वो टर्नओवर है। हम जो साहब ने हमें पूछा प्रश्न, हम इसको मिनिमाइज एटलीस्ट गुजरात के अंदर कम से कम 15 से 20% की वृद्धि हो, और जो जीडीपी जो चल रहा है पूरे स्टेट में और पूरे देश में, वो जीडीपी में भी हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है वो एक अपना सहयोगी के रूप में आगे आए। और ख़ास करके कोरोना के बाद में हम देख रहे हैं कि पूरे गुजरात में और पूरे विश्व में लोगों का आयुर्वेद और आयुष के प्रति विश्वास एकदम कटिबद्ध हुआ है। तो उस सिचुएशन में जो है वो अभी आने वाले समय में जो वायरल डिसीज़ है उसके सामने जो आयुर्वेद जिस तरह से कारगर हुआ है, आयुष विभाग जिस तरह से कारगर हुआ है, हम चाह रहे हैं कि हम एक एक घर तक आयुर्वेद को और आयुष विभाग को ले जाएंगे, जिससे एक नई चेतना के साथ में एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। अधिक मात्रा में नहीं होती, तो वो जैसे इसके पूरे एनवायरनमेंट पे आधारित रहता है। जैसे यहाँ पे गर्मी है, कुछ ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ पे ठंडे प्रदेश है, तो वहाँ पे कुछ वनस्पति ऐसी है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ का माहौल है तो कुछ वनस्पतियों के लिए ज़्यादा अनुरूप है। यदि हम जो वनस्पति
ठंडे प्रदेश में होती है उसको अगर यहाँ पे हम प्रयास करेंगे तो भी जितना चाहिए इतना मतलब जो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें हमें उत्पादन में हमें कहाँ ना कहाँ दिक्कतें आती है। तो ये देश प्रकृति और इसके प्रदेश पे भी काफ़ी निर्भर रहता है कि कौन सी वनस्पति कहाँ से रहती है। शाह, चेयरमैन ऑफ हार्ट फाउंडेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहले तो सब डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को आई वेलकम them. Only thing that I first congratulate Ashok Bhai Soni, Chintan Bhai and everybody. Since last 5 years I am attached with Ayushya, and being I am a doctor, heart specialist and diabetes, but I have a lot of interest in Ayurveda, and two dignitaries say that they want to do affiliation with India and other thing. I have a very big institute in Ahmedabad and Hasmukh Bhai is there, Chintan Bhai is there. We are glad to discuss and do something in Ayurveda. Another thing that now I have seen that allopathy and Ayurvedic, now allopathy, sorry to say, going down, being an allopathy doctor, but side effect another one, I don't want to tell you more, but now Ayurvedic is slowly coming up, and that is Asian medicine, and it is made by all trees and vanaspati. So only thing that I wish Ayushya the people should go on, and next year they will do more expo than this year. I always give full support to them since 5 years, and I wish all the best. Okay. Thank you.